केमिकल चेंज से आपका क्या मतलब है? जब आप कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट बॉन्ड्स हैं पार्टिकल्स ऑफ एटम के बीच में, वो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं. Hello and welcome everyone to the SSC Excel Science channel. We hope and we pray that you all are healthy, happy and hearty. We're going to begin with chemistry, the basics of chemistry, and as we studied here that its basics lies in matter, about its composition, its properties, what is the nature of matter, what are the different states of matter. So that we will begin with. You must be wondering, what am I doing here in this lush greens? I thought that we are talking about science, we are talking about nature, we are talking about the natural environment. Why not to begin with the environment, in the environment, taking the blessing of God. After all, it is one of the most beautiful creation and the gift of God to all of us. The serenity, the love, the peace it has, and the way it emotes, it's beautiful. So let's embrace science and embrace nature. So I think we shall begin. So beginning from the beginning, we have matter, that is the base of chemistry, wherein the heart of chemistry lies, that is matter. So we will begin with matter in our surroundings. So what is matter? Now by that time you must have heard the basic typical definition. Anything and everything that occupies space is matter. So, you know, the entire universe, the sky, the sun, the moon, these green lushy plants, these trees, shrubs, herbs, this ring, this entire me, everything in this universe that has a certain mass and has a certain volume is your matter. Okay. Now, how do you classify matter? There has been two basic school of thoughts when you have to classify matter. The earlier school of thought that used to focus upon, that is the classical thought, or the earlier Indian philosophers जिस चीज़ में बिलीव करते थे, दैट यूज टू बी कि जितना भी हमारा मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है. दैट इज़ योर अर्थ, दैट इज़ योर फायर, योर एयर, your sky and water, right? जिसको पंच तत्व कहते थे, right? अब जो दूसरा classification है, which is your modern classification, it says matter can be classified on the basis of its physical properties and the chemical properties. Now the two words, physical properties and chemical properties, we need to understand in deep. These two words ये आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, specifically for those students who want to indulge themselves more with science, who want to pursue science, or rather all the students who are having right now science as their career. So physical properties और chemical properties हमेशा आपके साथ रहती हैं. So what is a physical property? As the name suggests, physical properties are those properties of a substance that can be measured, that can be observed without doing a considerable change in the composition. मतलब आप उसकी composition को नहीं हिला रहे हो, उसकी physical attributes को study कर रहे हो, ठीक है. जैसे कि क्या हुआ, आपकी लेंथ, आपकी डेंसिटी, आपका मास, आपका वॉल्यूम, आपका कलर चेंज, आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है. क्योंकि इसमें आप कुछ फॉर्म चेंज नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर मैटर की, उसमें आपको कोई केमिकल चेंज नहीं कर रहे हो, आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में है वो उसी पर्टिकुलर स्टेट में ही उसमें चेंजेस आ रहे हैं, राइट. उसमें कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन या ब्रेकिंग नहीं हो रहा है. ओके, so that is your physical change. Now the physical change in itself can be divided into two parts, that is, rather you can say they are of two types. One is your extensive and one is the intensive. Now what are your extensive properties? Extensive properties are those properties which depend upon the amount of the matter, ठीक है. And your intensive properties are those properties which does not depend, I repeat, which does not depend upon the amount of matter or the substance used, are your intensive property. Now to understand it better, we will take some examples. For example, आपने वॉल्यूम इज़ योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. आपने अगर 2 लीटर पानी लिया है तो उसका
जो वॉल्यूम होगा वो 2 लीटर होगा। अगर आपने 4 लीटर पानी लिया है तो उसका वॉल्यूम 4 लीटर होगा, राइट। तो जब आप 2 लीटर से 4 लीटर आए तो वॉल्यूम चेंज हुआ, तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर मास, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर अमाउंट, सो इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली मास 2 kg है तो ऑब्वियसली उसका वेट 2 kg होगा, अगर वो 4 kg है तो उसका वेट 4 kg होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप इतना पानी लेते हो 1 लीटर उसको बॉईल करते हो तो भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। अगर आप 5 लीटर लेते हो उसको बॉईल करते हो तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अगर आप 1000 लीटर लेते हो उसको बॉईल करते हो तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो आप आधा लीटर ले रहे हो, 1 लीटर ले रहे हो, 10,000 लीटर ले रहे हो, लेकिन पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही है, विच मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, सो इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट अगर आइस का अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो इतने से का भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इतने का भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इतने का भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इट वुड नॉट चेंज विद अमाउंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डेंसिटी, व्हाट इट इज़, डेंसिटी इज़ एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वाई सो, इतने से अगर आप अमाउंट ले रहे हो उसकी डेंसिटी भी इतनी ही, जो पर्टिकुलर 1 आपका ग्राम पर लीटर है, सॉरी ग्राम पर ml है या आपका kg पर लीटर है, वो उतनी ही रहेगी। अगर आप इतने अमाउंट की डेंसिटी लेते हो तब भी वो उतनी फिक्स्ड ही रहेगी, इतने अमाउंट की लेते हो डेंसिटी तब भी वो फिक्स्ड ही रहेगी, ठीक है। अब डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास इज़ व्हाट, योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज़ व्हाट, योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो हमेशा इंटेंसिव होता है, ओके। तो दीज आर, इट इज़ वॉज जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल कि ये जो लॉज भी निकल कर आए हैं, ये सब कुछ हैज़ बीन कम अप फ्रॉम द प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन, जो आपको पता है कि ऐसे होता है। नाउ कम्स योर सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज़। Now what are chemical properties? As the name suggests, chemical properties are those properties basically which changes the composition of a substance, or rather that occurs when a chemical change occurs. अब chemical change से आपका क्या मतलब है, जब आप कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट बॉन्ड्स हैं पार्टिकल्स ऑफ एटम के बीच में वो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, जैसे कि उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी फ्लेमेबिलिटी, उसकी हीट ऑफ कंबशन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों इतनी ज़रूरी होती हैं, मतलब एवरीवेयर यू सी इन एनी चैप्टर, यू सी एनी टॉपिक यू टॉक अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उससे क्या हेल्प होती है, व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस, हाउ कैन दे बी यूटिलाइज्ड। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ए पर्टिकुलर उसको बी से रिएक्ट कराया और सी बना, ठीक है। अब सी कुछ बनकर आ गया, आपको नहीं पता कि सी एग्जैक्टली क्या है, तो आप कैसे फिगर आउट करोगे कि जो सी प्रोडक्ट बना है इसमें क्या क्या सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, इसको कैसे प्योरीफाई करना है, समझ रहे हो। तो अगर आपके ऑलरेडी जो स्टैंडर्डली इस्टेब्लिश्ड सब्सटेंसेज हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा इसका तो बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 100 आ रहा है, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 0 आ रहा है, तो विच मीन्स कि इसमें वाटर का कोई वाटर या वाटर से रिलेटेड कोई रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी, क्योंकि वो सारी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं, राइट। सिमिलरली आप उसकी फ्लेमेबिलिटी चेक करते हो, आप उसका हीट ऑफ कंबशन चेक करते हो और उसको मिलाते हो जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है इन योर स्टडीज़, इन योर फिगर्स, एंड व्हेन यू मैच देम यू गेट टू नो कि अच्छा ये पर्टिकुलर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो इस पर्टिकुलर अननोन सब्सटेंस की निकल कर आ रही हैं वो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से मैच कर रही हैं, विच मीन्स कि ये सब्सटेंस इस पर्टिकुलर अननोन सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा, ओके। तो बेसिकली इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन सैम्पल,
ओके फर्स्ट। सेकेंडली कैसे और क्या पता लगा कि प्योरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता लग गया कि अब पर्टिकुलर ये सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है, तो आप उसका सेग्रीगेट कर सकते हो, उसको प्योरीफाई कर सकते हो, उसका डिफरेंट और सेग्रीगेशन जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, बीट प्योरिफिकेशन, बीट सेडिमेंटेशन, एनीथिंग. सो it helps you with that. Okay, now let's dig into the small revision of what all we have done till now. What is matter? Matter is anything and everything that is surrounding us. Then what is this classification? There are two broad classification. One is your modern one and one is your previous classification, that is your classical one. Classical one says that matter is made of Panchtattva, that is your 5 elements, and modern classification says that matter is actually made up of your physical and your chemical properties, or consists of your physical and your chemical properties. Thank you so much for watching the video, and if you liked the video and thought it was worth watching, then do not forget to press that bell icon down below, and please share it with as many people as you can. There are a lot of people whom we meet every day, our helpers, a lot of construction workers, their groups, their communities, and everyone. Share as much as you can so that it can benefit the most, and consider subscribing, and do not forget to press that bell icon so that you get notified whenever we release a new video. Bye bye. Thank you so much.